Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. Students, in the previous class, you all know that we have done chapter number 1. We have done its exercises as well in the book. Now we are going to start chapter number 2, the computer generations. We are not going to complete the whole chapter in today's class. We are going to just discuss half of the chapter. So everyone, open page number 6. Generations is a popular word because we talk a lot of old and new generations, generation gap, etc. Computer generations means step-by-step changes in the computer, and each major change of progress after a period of time is called a computer generation. Computer development is broken down into 5 generations of the present day. So students, first of all, you should know that what is the meaning of generation. Beta, whenever we are talking about generation, generations can be old and generations can be new as well. All right. अब बेटा generations old भी हो सकती हैं और new भी हो सकती हैं. अब बेटा वो डिपेंड करता है, ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं जनरेशन को, एक्चुअली हम उर्दू में कहते हैं नस्ल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेशन? जनरेशन का मैंने आप लोग को मतलब बताया बेटा, नस्ल को कहते हैं हम. एंड जनरेशन एक्चुअली मीन्स ऑल ऑफ द पीपल बॉर्न एंड लिविंग एट अबाउट द सेम टाइम. ठीक है बेटा, जो भी लोग जो रह रहे होंगे या जिस भी जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन बेटा अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन की, तो कंप्यूटर जनरेशन का मतलब ये होता है स्टेप बाय स्टेप जो भी चेंजेस होंगी कंप्यूटर में, ठीक है, हम उससे कहते हैं टाइम पीरियड के साथ साथ जो भी चेंजेस होंगी कंप्यूटर में, हम उन्हें कहते हैं कंप्यूटर जनरेशन. All right, now they have given that they are telling us that there are 5 generations of computer which we are using till now, and you all know that I told you that first of all it is first generation. First generation computers were based on vacuum tubes. बेटा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस पे बेस होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स पे. और इनका टाइम पीरियड था बेटा 1942 till 1955. Then we have second generation computer and they were based on transistors. All right, second generation के computer किस पे बेस होते थे बेटा? ट्रांजिस्टर्स पे. And their time period was from 1956 till 1964. Then we are having third generation computer and they were based on integrated circuits and their time period was 1965 till 1975. After third generation computer, there were fourth generation computers and they were based on microprocessor. Their time period was from 1976 till 1979. After fourth generation computers, there were fifth generation computers and they were based on large scale integrated circuits and their time period was from 1980 till present. बेटा 1980 से जो अभी तक हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं और जो फ्यूचर में भी कंप्यूटर्स यूज करेंगे वो कौन से हैं बेटा? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर. ऑलराइट, अब ये पता लग गया बेटा आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन है वो कौन से कंप्यूटर यूज करती है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. First of all, in today's class, we are going to discuss just first generation of computer and second generation of computer. So let's start with the first generation computer. I told you that first generation computers time period was from 1942 till 1955. We do not use now. And let's start. Some prominent names of the early computers are given as under. ENIC stands for Electronic Numerical Integrator and Calculator. EDVAC stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer. EDSEC stands for Electronic Delay Storage Automatic Calculator. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer. And MANIAC stands for
मैथमेटिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बेटा अब अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो बेटा इनके कंप्यूटर्स जैसे आजकल हम यूज करते हैं डेल के, एचपी के, तो इनको नाम दिए गए हैं ना कि कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जो आजकल हम यूज करते हैं। अब बेटा इनके जब हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो इनके बेटा नाम दिए गए हैं आपको, जैसे ENIC, ठीक है, मैंने आप लोग को इसकी फुल फॉर्म बता दी है, एडवेक है, एडसेक है, यूनिवेक है या मैनियक। ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स है? ये थे बेटा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। These machines were built by using thousands of vacuum tubes. The vacuum tubes was the only high-speed electronic switching device available in those days. These computers were referred as the first generation computers. The instructions in the computers were written in machine and assembly language. There were no concepts of operating system in those days. अब बेटा अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो बेटा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स किस पे बेस होते थे बेटा? थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है बेटा, मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स जब प्लेस किए जाते थे तो जो है बेटा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनते थे, मतलब ये वाले ENIAC, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, मैनियक, ठीक है, ये कौन से बेटा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इन पे बेस होते थे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते थे बेटा। दीज कंप्यूटर्स वर ऑफ मैक्सिमम रूम साइजेस के, ठीक है, ये मैक्सिमम रूम साइजेस के कंप्यूटर्स होते थे। और बेटा ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे ये क्या करते थे कि हाई स्पीड देते थे। जब भी इलेक्ट्रॉनिक को स्विच करना होता था, मतलब हम जब भी इस कंप्यूटर पे वर्क करते थे तो ये क्या है बेटा, ये मैंने भी आप लोग को बताया था वैक्यूम ट्यूब्स किससे बने हुए होते थे बेटा? वैक्यूम ट्यूब्स बने हुए होते थे ग्लास से। ग्लास के अंदर जो है बेटा छोटा सा बल्ब प्लेस हुआ होता था और उसके अंदर वायर अटैच होती थी, जिसके थ्रू क्या होता था कि हम लोग जो है इजीली वर्क कर सकते हैं क्या कहते हैं इस पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। और ये बेटा सिर्फ एक वैक्यूम ट्यूब से नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब से बने हुए होते हैं ये वाले कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। और इसलिए बेटा मैंने आप लोग को इनका साइज क्या बताया है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या रूम्स के साइजेस के होते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स प्लेस किए जाते हैं, तो इनका जो रूम का साइज होता है इनके हिसाब से होता है। अब बेटा इनको जो है इसीलिए कहा गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और जब भी बेटा हमें इंस्ट्रक्शंस देने होते थे इस कंप्यूटर को, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को जब भी हमें इंस्ट्रक्शन देने होते हैं तो वो हम कौन सी लैंग्वेज में देते हैं बेटा? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इसमें हम इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। अब हम बेटा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन कंप्यूटर के जनरेशंस के फीचर्स क्या थे। नंबर 1, दे वर लार्ज इन साइज। बेटा अभी मैंने आप लोग को बताया कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो साइज होता था वो बहुत ही लार्ज होता था, ठीक है। सेकंड फीचर है दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस ऑफ देयर टाइम। बेटा अपने टाइम पीरियड में इनका जो कैलकुलेटिंग टाइम था वो क्या था, बहुत ज्यादा फास्ट था। नंबर 3, दे हैड लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज। बेटा इसका एक और फीचर ये था कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज जो थी, मतलब इसके अंदर जो एबिलिटीज थी प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड थी, मतलब ज्यादा नहीं थी, वो बहुत कम थी। नंबर 4, स्लो ऑपरेटिंग स्पीड। बेटा जब भी कोई चीज ऑपरेट करनी होती थी या परफॉर्म करनी होती थी तो इनका जो ऑपरेटिंग स्पीड होती थी वो बहुत कम होती थी। नंबर 5, दे हैड हाई पावर कंजम्पशन। बेटा इनकी जो पावर कंजम्पशन होती थी वो बहुत हाई होती थी, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करते थे वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ऑब्वियसली जब इनका साइज बड़ा होगा तो इनका जो पावर कंजम्पशन होगी वो भी क्या होगी बेटा, हाई होगी। नंबर 6, a computer typically used more than 10,000 vacuum tubes। बेटा ये जो कंप्यूटर होते थे ये मैक्सिमम जो है
10,000 वैक्यूम ट्यूब से बने हुए होते थे। ठीक है। नंबर 7, रिक्वायर्ड अ लार्ज स्पेस फॉर डेटा स्टोरिंग एंड ऑपरेशन। बेटा जब भी इसके अंदर डेटा स्टोर करना होता था या इसकी स्पेस चाहिए होती थी, तो वो क्या करते थे, ज्यादा उसके लिए स्पेस चाहिए होती थी इसको स्टोर करने के लिए। सो आई थिंक फर्स्ट जनरेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एवरीवन।